Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. First topic is immunity. What do you mean to immunity? Immunity is the bodily defined as the capacity of the body to recognize a material as a foreign to itself and neutralize the stimulate of metabolism when then without injury to be organ tissue. That is called to the immunity. Immunity is simply language. The immunobiology is the study of organization and functioning of the immune system. The immune system provides the immunity protection against the disease. There is a most important here are definitions on the protection against disease is the immunity. Here the one fact is a Jenner, the father of immunology. Jenner is called to the father of immunology, Edward Jenner. There is a complete name is Edward Jenner is a 1749 to 1823. Is a considered to be a father of modern immunology, and is a demonstrated is that is the inclusions of cowpox is a crust afforded to the protection of a human against to the smallpox. He observed that is a milkmaid who has recovered that a cowpox is never to contracted with the disease smallpox. Another there is the name of vaccines for Latin words Veka. Veka for the cow is a name with into the belong to the a milkmaid, and there is a vaccination individually be a protect from to small virus. There is smallpox virus. Such a protection give them that is called the immunity. To a smallpox is a other genus neither now to the actually causing agent of the disease nor a actually mechanism of protection. That is a Jenner is a father of immunology. He is discovered from the 1749 to 1823. Here is the concept of self and the non-self. There is the most important here. The basis of the above mentioned the protection was the ability of immunosystems of man is a milkmaid and the vaccination individual to distracted or between to self. There is a organ tissue and non-self is a component of the outsider. The smallpox virus is this is the context and that individual induced the is a psychologically is response immuno response is a substance that are different from to self component. For example, on immuno response is a individual induced against the pathogen here is a bacteria virus fungi and the parasite. There is a different types of pathogen here is a bacteria virus fungi and parasites attacking to the body of host. That is the most important. Let's now to learn about the different way which the body defect itself from to the pathogen and other harmful substance. दोस्तों यहाँ पर जो बात आया है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की बात आ रही है प्रतिरक्षा तंत्र की। देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। कहते प्रतिरक्षा के व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों को पहचानने और अपने उत्कों की क्षति पहुंचाकर या बिना क्षति पहुंचाकर बाहरी पदार्थ को निष्पादित निष्कर्षित और उपचयित कर देते हैं। तो बात तो इतना इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि कोई बाहरी पदार्थ हम पे अटैक करता है तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी होती है उसको वो बाहर ही रहने देती है, अंदर प्रवेश करने के लिए वो अपना बैरियर बना लेती है। तो इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अगर इम्यूनिटी रहता है तो आप कोई भी वायरस के रिगार्डिंग आपका प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाएगा और उसको आपके बॉडी में एंट्री नहीं करने देगा। अगर एंट्री हो भी गया तो उसको जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको नष्ट तहस नहस कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं या इसी को इम्यूनिटी क्षमता भी कह सकते हो, जिसमें निष्प्रभावित कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, उपचयित कर देती है। तो ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति का ह्यूमन सिस्टम तगड़ा हो, ह्यूमन सिस्टम में पूरी तरह की जो है पावर हो। अब यहाँ पर बात करें हम जो इम्यूनोबायोलॉजी की बात करते हैं यानी प्रतिरक्षा जैविक की बात करेंगे तो इसमें बात यही आती है कि जो प्रतिरक्षा जैविकों में प्रतिरक्षा तंत्र के संगठन का जो है कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है यानी किस प्रकार वो कार्य करता है, इस विषय में यहाँ पर चर्चा की जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र रोगों के लिए प्रतिरक्षा रोगों से बचाव प्रदान करता है। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे अंदर बॉडी जो बीमारी होती है उससे बचाव के लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। अगर हम बात करें जेनर की प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में, देखिए एडवर्ड जेनर जो थे काफ़ी जुझारू साइंटिस्ट थे, उन्होंने हर बात पे यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश किया। तो इसलिए इनको जो है प्रतिरक्षा तंत्र के जो है जनक के रूप में जाना जाता है यानी फादर ऑफ जो है इम्यूनिटी, इन्हीं को माना गया। क्योंकि एडवर्ड जेनर ने कहते हैं 1700 जो है
1949 से लेकर 1823 ईस्वी तक आधुनिक प्रतिरक्षा जैविक के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि जो जो है गौ चेचक की पपड़ी यानी क्रस्टेड की टीका लगाने यानी इनक्यूलेशन से मानव में जो है चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षा हो जाता है। तो देखिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उन्होंने बताया था। उन्होंने देखा कि अगर ग्वालियन से एक बार गौ चेचक संक्रमण हो जाने के बाद स्वस्थ हो गया है तो उन्हें कभी भी चेचक का संक्रमण दोबारा नहीं होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी कि अगर चेचक किसी को एक बार हो गया है तो दोबारा जो है नहीं होता है। कारण ये होता है कि वो पहले जो उसको पहली बार हुआ है तो उसका ह्यूमन सिस्टम जो है उसको रिकग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, और दूसरी बार वही बीमारी उस पर अटैक करता है तो वो उसको होने नहीं देता है, क्योंकि उसकी ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है, तभी ये कंडीशन पैदा होता है। कई बार तो देखने को मिला है कि अगर स्मॉल पॉक्स हो या काऊ पॉक्स हो तो ये दोबारा भी हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन तब होते हैं जब उनके ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ह्यूमन सिस्टम जो होती है इन सब बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी बात को जो है जेनर ने जो है प्रतिरक्षा तंत्र के में पूरी बात को जो है दृष्टिगोचर रखा था। कहते हैं अंततः गाय के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द वैका से वैक्सीनेशंस यानी टीकाकरण शब्द प्रचलित हुआ है। ग्वालिन्स का टीका लगाए गए व्यक्ति चेचक के संक्रमण से बचे रहे। इस सुरक्षा में उन्हें चेचक के विरुद्ध असंक्रमण प्रदान की ताकि जेनर की न तो इस रोग से वास्तविक कारक के बारे में कोई भी जानकारी थी और न ही सुरक्षा प्रणाली कोई ज्ञान था। क्योंकि देखिए बेशकली हम जो है एडवर्ड जेनर को जो है इसका फादर मानते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो उस समय इन सब बातों की बहुत ही कम ज्ञान था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो योगदान दिया वो काफ़ी सराहनीय थी और इसी योगदान की वजह से जो है आगे इतने बड़े खोज हो सकी। बात यहाँ पर आता है अपने और पराये की संकल्पना। देखिए अपने और पराये की संकल्पना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने होते हैं वो ठीक है जो आपके लिए अच्छे होते हैं, और जो पराये होते हैं जो आपको बहुत तरह के नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये बात अपने और पराये की यहाँ पर आ जाती है। ऊपर बताई गई सुरक्षा का आधार था ग्वालिन का टीका लगाए गए व्यक्तियों में अपने स्वयं ऊतक और पराये जो बाहरी व्यक्तियों के संगठित यानी चेचक का वायरस के बीच भेद कर पाने की क्षमता। तो कहते हैं अगर टिश्यू अपना टिश्यू था तो अपने टिश्यू तो वो एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन बाहरी के द्वारा लगाया गया जो टिश्यू थे वो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल बात आ गया था। कहते हैं एक व्यक्ति अपने से हटकर विभिन्न जो है पदार्थों के विरुद्ध एक शक्ति क्रियात्मक अनुक्रिया करते हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रिया उदाहरण के तौर पर अगर रोगजनक यानी जो है जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी जो कि पोषी पर आक्रमण करते हैं उनके विरुद्ध एक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है। यानी अगर देखा जाए तो ये रोगजनक जैसे जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, परजीवी हो तो उसके प्रति जो है प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पर संकल्पित रूप में कार्य करता है। आइए अब हम इस पर विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानने की इनके द्वारा शरीर में रोगों एवं अन्य हानिकारक पदार्थों का स्वयं की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है आगे। There is the next topic is the defense mechanism in the body. There is the most important here. Defense mechanisms in the body. There are 4 defense mechanisms in our body. First is the immunity is a defense to the body from an infection. Second is a metabolic defense to be metabolized and is a dactophaxis from foreign chemical. And third is a stoppage of the bleeding is a hemostasis to prevent the blood loss. And fourth is the resistance to stress mainly through the release of hormones. There is the immunology. The defense is the most important defense mechanism. It's a provide to protection against the various infected agent as a virus, bacteria, fungi, parasites, and also against the develop of tumor. There is a defense mechanism of body is the most important for hair mechanisms. And there is the immunological defense serves on 3 main functions here. So there defense against the microorganism and recognize and destructed of the mutant cell surveillances. And here third is the removals of damaged and non-functioning cell to maintain a normal state of homeostasis. There is the most important is the surveillance here and defense to the microorganism. There is the immunological defense serve of the main function here. दोस्तों यहाँ पर अगर बात हम करें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है और इम्पोर्टेंट है भी। कहते हैं हमारे शरीर में 4 प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहला तो यही होता है कि शरीर के संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरक्षा। दूसरी यही होती है कि बाहरी
रसायनों के उपचार के जो है निराविषीकरण के लिए उपचारी सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा जो होता है रक्त स्वायत्त थमना यानी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हो या रक्त स्तंभ हो, या स्तंभ रोकना जो है रोकना या रुकना, जिससे रक्त की हानि नहीं होती है। अगर देखा जाए तनाव के विरुद्ध जो है प्रतिरोध मुख्यतः हार्मोन के जो है निःसृत होने से ऐसा होता है। अगर इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है तो यह अनेक संक्रमण कारकों के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रदान भी करता है। जैसे कि आपको पता ही है कि विषाणुओं, कवकों, परजीवियों के विरुद्ध, और साथ ही अब्दुल एक प्रकार के जो है रसौदी ट्यूमर वृद्धि के विरुद्ध भी इसका जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य रखता है। तो ये जो है प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको 4 रूप में यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। बात अगर हम यहाँ पर करें प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रणाली की 3 मुख्य कार्य के विषय में, तो ये तो आपको पता है कि पहला कार्य तो इसका यही होता है कि सूक्ष्म जीवों की से प्रतिरक्षण, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका जो है प्रतिरक्षण करते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर को काफ़ी हद तक बीमार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी बात तो यही आता है कि उत्परिवर्तित कोशिकाओं की पहचान व विनाश, क्षतिग्रस्त एवं अकृत्रिम कोशिकाओं का निराकरण द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखना और समस्थापन की समवस्था जो है हेमोस्टासिस में किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनो सिस्टम। द इम्यूनो सिस्टम इज हेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय नाउ यू आर aware that immunity to infections is one of the most important factor facilitated is the survival of the individually. Immunity is mainly provided by a complex network of cells, tissue and soluble factor. The network is a collectivity referred to as the immune system. Cell is a participating in the immune response are they organized into the discrete and the lymphoid tissue and organ. There is a most important here immune system. There is a tissue and the organ involved in the immune system here. The lymphoid organs are divided into 2 groups mainly here. A central lymphoid organ is a primary lymphoid tissue, example thymus and bone marrow. There is show here. Here show the major lymphoid organ and tissue here. There is a primary lymphoid organ and secondary lymphoid organs and tissue here. The thymus, bone marrow, spleen there here is the primary lymphoid organs. On the other side is the bladders, rings, lymph node is the toxins, androgens and the branchious, lymphoid node, bone marrow, lymphopropia, mentoid lymphoid nodes, and there is a pairwise patches and the residual lymphoid tissue and the lymphoid nodes here. The major lymphoid organs and tissue here present this diagram. There is a most important diagram shown in this diagram. The second is a peripheral lymphoid organ and secondary lymphoid tissue. Examples as a pair is a patches is a toxins is a lymphoid node and the mucosa is associated to the lymphoid tissue is a MLT, and which is associated with there is a respiratory system, erythrocytes and alimentary canal. They show in this figure. And the next here, cell of immune system. The cells of immune system here, the first is the lymphocytes, lymphoid cell. There are lymphocyte, lymphoid cell here. All these are individually to derived from to the hematopoietics and the blood cells, the producing stem cell of the bone marrow. There is a bone marrow here, and stem is a cells mean to the undifferentiated cells and which can undergoes to the unlimited divisions and can be given rise to one or several different cell types. Apart from producing lymphocytes, bone marrow stem cell also is differentiated to be produce erythrocytes. Erythrocyte is a red blood cells and thrombocyte is a blood platelets, and the granulocytes and the monocyte is a white blood cell. There is the most important here is the lymphocyte part here. The erythrocyte is the red blood cells, thermocyte is the blood platelets, and granulocyte and monocyte is the white blood cells. And the next here, is a macrophages. There is a macrophages here. There is second is a macrophages. They are derived from two monocytes. The lymphocytes are the major cell types of responsible for performing the immunofunction. About 10-12 power lymphocytes consist of is a mature lymphoid system in the humans, and the functioning lymphocytes are divided into 2 subclasses. There is a B cells and B lymphocyte. T cells are T lymphocytes.
Morphologically, these cells cannot be differentiated, but are functioning. These are their distracted cell of human system and differentiated on the basis of the presence on the absence. A specific cell surface is a markers. Here is the B cells means B lymphocytes here. The main function of B cells here, initially antibody mediated to immune response and transfer into the plasma cells which is a secret to the antibody. That is the most important and the next is the origin of B cells. The B cells, what do you mean to origin of B cells here? Here is the origin of B cells. The B cell stand of the viewer is the study is the birds. Showed that is the versus is the fabricus as a Hindu god is lymphoid organs was the site of antibody producing cells. And these cells are therefore to term to the B cells is a B derived from to the versa of the fabricus. B cells mature in their bone marrow and then are carried by their blood to be a peripheral lymphoid organ. In a mammals, B cell is a linkage began to the fetus embryonic liver. This process began to during the 8th weeks of human gestation, means pregnancy. There fetus the liver is a continuously to be the major cyst for the production of the B cells and unit until we are into the second is a trimester is a 4 to 5 month of pregnancy. A stem cell there is a populate for the bone marrows and therefore B cells are continuously producing in the bone marrow throughout a life. Here show the bone marrow here diagram and there is a hemophagocytic stem cell. There is a as divided is a thymus is a different part. There are thermocytes, erythrocytes, T lymphocyte, B lymphoimmunocytes. They are present here. And there is also is a granulocytes, monocyte, is communities, antibody producing plasma cells, immunocomplex. There is a origin of B and T cells here. There is a origin for the bone marrow. So here is the characteristics of the B cells here important. There is first here B cells display immunoglobulins as an integrated protein of their cell membranes, and this surface immunoglobulins antibody act as a receptor for anti-specific to it, and their B cells are responsible for their production of the antibody. Is activated the B cells is a transfer into plasma cells. You will learn about the antigens and antibody in the next section of lesson. There is the most important here is the characteristics of B cells here. There is shown in this diagram in the flow chart is the processing of antigens here of B cells. There produce a plasma is a cells and cell membranes. There is the most important and goes based to there is a specific antibody. There is a B cell differentiation and the anti production here. Here is the plasma cell is a produce 1,000 of antibody molecules per second before they are die in a day or so. There is a most important fact here. A plasma cell produce 1,000 of antibody molecules per second before they are die in the day or so. The sum of B cell is a progeny do not differentiate into the plasma cell but rather become a memory cells and which are produced to antibodies in the event of antigen is a reappearing against a future. There is a most important here. The next here is a B is a T cell means T lymphocyte. There is a T cell is a T lymphocyte here. In a contrast to B cells is other lymphocytes the leap to the bone marrow in the immature state during to the fetus and the early stage of life, and these are the carried to be a thymus matured in their thymus and then to the immigrate to the peripheral lymphoid organ, and this cells is a constituted to second major class of lymphocyte. The lymphocytes are T as they are T derived from the thymus. A producing of T cells is a completely earlier life, but like B cells there are also undergoes to the mutasis is a peripheral lymphoid organ. The daughter cells began to identical to be original T cell, and there is a most important main function of T cells here. So first of all, here is the main function of T cell is regulate to the immune response. That is the first, and second is a meditate cell meditated immuno is the CMI response, and second third is introduced to the B cell to producing antibody, and the
T cells are functionally classified into three categories, that TH, TC and TS. The helper T cells here TH is a promote to the response of B cells or resulting in antibody production activity other T cells. And second is the cytotoxins T cell. TC is a kill to virus infected cells and tumor cells. And third here, there is suppressor is a T cells, a TS here. Suppressor is T helper T cells and maybe also B cell is a limit regulate activity of the latter. And thus we see that a T cell is a mediate two general types of immunologics is a function, effector and regulator. The statutory T cells are differential on the basis of presence of absence some or specific surface molecules. T cell receptor, but both B cells and T cell work in the cooperations. There is a cooperation to the each other. यदि बात करें हम प्रतिरक्षा तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ह्यूमन सिस्टम हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध है और ये हमारे कई तरह के संक्रमण को बचाने के लिए भी सुचारू रूप से कार्य करता है। हम जानते हैं कि संक्रमण के प्रति रोग क्षमता जो है प्रतिरक्षा एवं महत्वपूर्ण कारक है जो एक व्यक्ति को जो है अस्तित्व को जो है सुदृढ़ बनाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है और ये सारे ह्यूमन सिस्टम की वजह से ही संभव हुआ है। कहते हैं अगर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उत्कों एवं विलयता यानी बिलीय कारकों पर जटिल तंत्र है तो इस तंत्र को जो है सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहा जा सकता है। यानी यही प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर की कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। बात करें प्रतिरक्षा के अनुक्रियाओं के संबंधित, कोशिका को अलग जो है लसिकाभ उत्कों और अंगों में संगठित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लसिकाभ और उत्कों और अंगों में जो है इसको संगठित किया जाता है, अलग किया जाता है। अगर बात करें हम पहली पॉइंट को, तो कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधी ऊतक और अंग। देखिए कौन कौन से अंग जो होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा। अगर देखा जाए तो लसिकाभ अंगों के दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है हमारा केंद्रीय लसिकाभ अंग तथा प्राथमिक लसिकाभ ऊतक, उदाहरण के लिए थाइमस और अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पहला रहता है। यहाँ पर इसके विषय में आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम को जो है बूस्ट करने के सारे ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर अस्थि मज्जा जहाँ पर जो है ब्लड बनती है, जो कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, पहिया भी दिखा हुआ है, थैलमस भी दिख रहा होगा आपको, प्राथमिक लसिका अंग भी दिखने को मिलेगा और द्वितीय लसिका अंग भी आपको दिखेगा, जिसमें पैच जो है पेयर पैच अंतरिक्ष संयोजिक लसिका वर्ग जो है लेमिनी जो प्रोपिया अस्थि मज्जा लसिका पर्व। तो ये सारे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखता है। तो ये सारे के सारे जो है मुख्य लसिका अंग का ऊतक हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये आपको काफ़ी जो है समझाने के लिए काफ़ी है कि सारे जो है हमारे ह्यूमन सिस्टम के पार्ट हैं जो हमारे शरीर में ह्यूमन सिस्टम को विकास करने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर बात यहाँ करें प्रदेशी लसिका अंग या द्वितीय लसिका ऊतक के, तो उदाहरण के लिए जो है पहली जो है पेचर पैच टर्निमस लसिका पर मैक्यूलस युकृत लसिका ऊतक एमएलटी जो श्वसन तंत्र मूत्र अंग और आहार नाली से संबंधित है, जैसे कि हम चित्र में भी अभी देखे हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो द्वितीयक में आते हैं जो कि हमारे ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएँ कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर अगर बात आता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो पहली तो यही आता है लसिकाणु। देखिए लसिकाणु जो होता है लसिकाभ कोशिकाएं भी कहते हैं, हम इसको लसिकाभ कोशिकाएं भी कहते हैं। कहते हैं ये सभी आरंभ में जो है अस्थि मज्जा के रुधिर उत्पन्न करने वाले रक्तोत्पत्ति स्टोम सेल्स अथवा वृत्त कोशिकाओं से वृत्त उत्पन्न होती है। और वृत्त कोशिका का अर्थ जो है अविभेदित कोशिकाओं से है जिनमें असीमित विखंडन हो सकते हैं और जो एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं को जो उत्पन्न कर सकती है। कहते हैं अगर लसिकाणुओं को उत्पन्न करने के अलावा अस्थि मज्जा स्टोम कोशिकाओं में बढ़कर जो है रक्ताणु यानी अर्थोसाइटिस लाल रुधिर कोशिकाएं जो है विषम अणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स रक्त पिटकाणु और कणकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट्स एक कोशिकाणुओं में मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिका यानी वाइट ब्लड सेल बनाती है। तो ये लसिकाणु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हर तरह के चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अर्थोसाइट्स हो या लाल रुधिर कोशिका हो, ब्लड प्लेटलेट्स हो, ग्रेमेटोसाइट्स हो, ठीक है, या वाइट ब्लड सेल्स हो। तो सारे चीज़ें जो होती है इसी में सम्मिलित होती है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है।
उसके पश्चात आता है वृत्तभक्षकाणु। देखिए वृत्तभक्षकाणु होती है ये एक केंद्रिकाणु यानी मोनोसाइटों से जो है उत्पन्न होते हैं और प्रतिरक्षा कार्य करने के लिए उत्तरदायी मुख्य कोशिका प्रकार की लसिकाएं जो है लसिका कोशिकाएं हैं। कहते हैं लगभग अगर 10 की पावर 12 देखा जाए तो लसिकाएं कोशिकाओं के प्रवृत्त लसिकाम प्रणाली का निर्माण करती है और कार्य के अनुसार इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसको 2 भागों में जो है बांटने की कोशिश किया गया है। एक तो है बी कोशिकाएं, ठीक है, जिसमें बी लसिकाणु होते हैं, और एक होता है टी कोशिकाएं यानी टी लसिकाणु। तो ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं आकृति के आधार पर इन कोशिकाओं को भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रियात्मक रूप से जो है ये भिन्न होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका सतत संकेतिक तथा उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर भी भेद किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर बात हम आगे करें तो इसमें बी कोशिकाएं जो बी लसिकाणु हैं और बी कोशिका के प्रमुख कार्य तो यही होती है कि प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रक्रिया को आरंभ करना। तो ये तो हर जगह बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देता है कि प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का काम ही होता है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया को आरंभ करके जो है हमारे शरीर को जो है रक्षा कर दे बाहरी फोरगन जो भी मटेरियल बॉडी में एंट्री कर रहा है उसके प्रति। अगर देखा जाए प्रतिपिंड एंटीबॉडी स्वेत करने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान देता है। अगर हम बात करें बी कोशिका की उत्पत्ति के विषय में तो ये भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा। अगर बात करें बी वर्षा इनपुटेलिका के लिए उपयुक्त होती है। पक्षियों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पक्षियों में पाई जाने वाले फैलेसियोट प्रपूटी यानी पशु आहार नली की लसिका अंग प्रतिपिंड कोशिकाओं के आरंभिक जो है उत्पादन का स्थान था। इस कोशिकाओं के बी कोशिका कहा जाता है और बी की उत्पत्ति जो है वर्षा ऑफ फैब्रिकस से हुई है, यानी वर्षा ऑफ फैब्रिकस से हुई माना गया है। बी कोशिकाओं में अस्थि मज्जा में प्रवृत्त होती है और तब पश्चात रक्त द्वारा जो है प्रदीधित लसिकाएं अंगों तक ले जाए जाते हैं। स्तनधारियों में बी कोशिकाओं के वंश आरंभ में जो है भ्रूणित युकृत में उत्पन्न होते थे और ये प्रक्रिया मानव जो है सर्गभरता को 8वें सप्ताह में आरंभ होती थी। भ्रूण वर्णित युकृत जो होती बी कोशिकाओं के उत्पादन का प्रमुख स्थान माना गया था और स्तंभ 4 से 6 माह तक बना रहा। स्टोम कोशिका फिर अस्थि मज्जा में बस जाती है और इसके बाद उम्र भर बी कोशिका अनवरत रूप से जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती रहती है, यानी जहाँ पर जो है ब्लड का बनते हैं वो अस्थि मज्जा होती है और यहाँ से जो है बी कोशिकाओं की उत्पत्ति संभव हुआ, यानी वर्षा फैब्रिका से जो है इसकी उत्पत्ति माना गया। लेकिन इसमें जो है अस्थि मज्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान दिया और ये भ्रूण में विकास का जो है प्राथमिक चरण माना गया था। जैसे कि आप एक डायग्राम में भी देख सकते हो कि अस्थि मज्जा से ही इसका जो है उत्पत्ति दिखाया गया है। अस्थि मज्जा ही आपको पहला दिखेगा, उसके बाद रक्त उत्पत्ति स्टोम और वृत्त कोशिकाएं दिखेंगे। उसके बाद जो है ये थाइमस में जो है काफ़ी भागों में विभक्त हो गया है। इसमें जो है थाइमस जो है बिंदु जो है बिंबाणु यानी थैमोसाइटोस में, रक्ताणु ब्रोकोसाइटिस मोनोसाइटिस में, एंटीजन संवेदनशील, टी लसिकाणु बी लसिकाणु, ठीक है। तो सारे चीज़ें में विभक्त कर दिया है, यानी बी कोशिका और टी कोशिका की उत्पत्ति का जो है ये चरण सीमा बताई गई है जहाँ से इसकी उत्पत्ति जो हुई है। तो देखा जाए तो बोन मैरो ही जो है सबसे प्रथम स्थान माना जा सकता है। यहाँ पर कोशिकाणुओं के अभिलक्षण की बात हम करें तो कहते हैं बी कोशिकाणु में जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की अपनी कोशिका झिल्ली के जो है विभिन्न जो है प्रोटीनों के रूप में दर्शाई जाती है और कहते हैं ये सतत जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी जो है प्रतिपिंड एंटीबॉडी इसके विशिष्ट प्रतिजन एंटीजन के लिए जो है ग्राही गाहक का कार्य काम भी करती है। बी कोशिकाओं जो है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है और सक्रिय बी कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। आप आगामी खंडों में जो है प्रतिजनन यानी एंटीजनन और जो है एंटीपिंड यानी एंटीबॉडी के विषय में भी जानोगे कि प्रतिपिंड जो है एंटीबॉडी उसका क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो संशोधित प्रतिजन जो है एंटीजन आपको दिख रहे होंगे, बी कोशिकाओं के साथ अटैच है और स्मृति कोशिका भी दिखेगा और प्लाज्मा कोशिका भी दिखेगा। तो ये जो डायग्राम है काफ़ी कुछ बताने के लिए पर्याप्त है कि बी कोशिका विभेदित और प्रतिपिंड निर्माण किस प्रकार होता है। तो विशेष प्रतिपिंड निर्माण कुछ इसी प्रकार से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है।
अगर यहाँ एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कोशिका एक या अधिक दिनों में मर जाने से पूर्व हजारों की संख्या में प्रतिपिंड अणु प्रति सेकंड उत्पन्न करती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गया कि प्लाज्मा कोशिका एक या अधिक दिनों में मर जाने से पूर्व, यानी जो है हमारा कोशिका जो है प्लाज्मा कोशिका जो होती है एक या अधिक दिनों में ही मर जाती है, ठीक है। लेकिन मरने से पहले वो जो है पूर्व हजारों की संख्या में जो है ये प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी अणु बना देते हैं, यानी पर सेकंड के हिसाब से। कहते हैं बी कोशिकाओं की कुछ जो है तृतीय प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित नहीं होती है, वरना स्मृति यानी मेमोरी कोशिका बन जाती है, जो प्रतिजनन के भविष्य में पुण्य प्रकट होने की स्थिति में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी बनती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लाज्मा कोशिका मरने से पहले हजारों के में जो है यहाँ पर प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी तैयार कर देती है हमारे शरीर के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर हम बात करें टी सेल के विषय में, तो यहाँ पर टी सेल जो होती है टी कोशिकाएं यानी टी लक्षणाणु भी कहते हैं इसको। ये जो होता है बी कोशिकाओं के विपरीत दूसरी लक्षणाणु भ्रूण यानी अवस्था का जीवन के आरंभिक अवस्था में अस्थि मज्जा छोड़ देती है, यानी आखिरी अवस्था में जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो है इसको छोड़ती है। ये थाइमस में ले जाई जाती है और इस अंग में प्रवृत्त होती है, तब उपरांत जो है प्रथित लक्षिकाम अंगों की ओर गमन करती है और ये कोशिकाएं द्वितीय लक्षणाणु कोशिका वर्ग का निर्माण भी करती है, जिन्हें टी लक्षणाणु या टी कोशिका भी हम कहते हैं। टी की जो है उत्पत्ति थाइमस यानी थाइमस से हुई है, लेकिन जो है बी कोशिका की भांति इसकी भी प्रथित लक्षिकाव अंगों में जो है सूत्री विभाजन होती है, यानी सूत्री विभाजन के द्वारा ही ये आगे विभक्त होता है। अंततः कोशिका के मूल्य जो है टी कोशिका के समरूप ही होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है टी कोशिकाओं के लिए, और जो बच्चों के विषय में टी कोशिकाएँ हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात करें हम टी कोशिकाओं के कार्य के विषय में तो देखते हैं क्या इसका कार्य है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, अगर हम टी कोशिकाओं के मुख्य कार्य के विषय में बात करें तो प्रतिरक्षा जो है प्रतिक्रिया का नियमन करती है, यानी प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया का नियमन करती है, और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया की जो है मध्यस्थता भी यही करती है। प्रतिरक्षा बनाने के लिए बी कोशिकाओं के जो है प्रेरित भी करना इसी का कार्य होता है, और टी कोशिकाओं के उनकी क्रियाशीलता के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित करना इसी का कार्य होता है। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए सहायक टी कोशिका सबसे पहले निर्माण करती है, सहायक टी कोशिका जिसको हम टी एच के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है बी कोशिकाओं के अनुक्रिया को बढ़ाते हैं, जिसमें प्रतिपिंड का निर्माण होती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और अन्य टी कोशिकाओं से कोक्रिया बनाती करती है ये। उसके पश्चात दूसरी बात जो होती है इसमें जो है कोशिका विषी, यानी कोशिका विषी जो होती है साइटो कोशिका यानी टॉक्सी मतलब अविषित टी कोशिका यानी टीसी बनाती है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर टॉक्सिक की बात की गई है, विषय की विष की बात की गई है। तो ये विभिन्न संक्रमित कोशिकाओं के जो है अब्दुल कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, तो इसीलिए इसमें जो है टॉक्सिक की बात आ गई है। अगर हम सदामक टी कोशिका यानी टी एस की बात करें तो ये जो है सहायक टी कोशिका का दमन करती है और संभवतः बी कोशिकाओं को क्रियाशीलता को निमित्त भी करती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि टी कोशिकाओं को 2 सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा कार्य करती है। इसमें देखा जाए तो प्रभावक यानी प्रभावकारी और नियामक यानी नियमनकारी 2 तरह के इसमें दिखाया गया है। सकारात्मक रूप से टी कोशिकाओं के कुछ विशिष्ट सतहीय अणुओं यानी टी कोशिका गांठों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। बी कोशिकाओं एवं टी कोशिकाओं एक दूसरे से के लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध भी होती है।